Assalamu alaikum, dear participants, guests, and the participants from different universities, different institutes. Assalamu alaikum to all of you. I welcome you all on behalf of Women University Multan Administration and the Department of Zoology. I am Dr. Asiya, Chairperson, Department of Zoology, the Women University Multan. I am thankful to my administration, my Vice Chancellor, my registrar, and the whole team who have supported me in organizing this seminar. I am really thankful to the administration of Minar Cancer Hospital Multan, who have provided us the spokesperson, Dr. Rubina Mukhtar and Dr. Fahmi Abdullah, on this on the celebration of this World Cancer Day, which is really of very great importance. I will say a few words about World Cancer Day, and then my guest speakers will detail about the importance of this day and different types of cancers which we must have knowledge about. World Cancer Day is organized by the Union for International Cancer Control and celebrated each year on 4th February. It is an opportunity to rally the international community to end the injustice of preventable suffering from cancer. So this year's theme is I Can, We Can, acknowledges that everyone has the capacity to address the cancer burden. We can work together to reduce cancer risk factors. So we can overcome barriers to early diagnosis, treatment, and palliative care. We can work together to improve, control, and achieve global targets to reduce premature mortality from cancer and non-communicable diseases. So, considering these facts, uh, as we are working on cancer research and our great speakers, they are directly treating the patients, dealing with the patients, and they are directly treating those people who are suffering. They can show their knowledge, they can tell about their sufferings, and they can tell what they are feeling, what their feelings are. So we both can move together to spread this knowledge about cancer on this World Cancer Day, and we can save the lives by treating the people and by adopting some better strategies for the patients. Thank you very much. Thank you all. And I hope this will be a great opportunity for all of us to learn the facts about cancer, and we will be, inshallah, spreading this knowledge to all our near and dear ones. I welcome the guest speakers to start their talk. Thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much, Dr. Asya and Dr. Nahi, especially for organizing this seminar on this important topic of current health concern, and especially for giving such an elaborative introduction for World Cancer Day. I will introduce myself and my organization shortly. My name is Dr. Rubina Mukhtar. I am consultant radiologist at Minar Cancer Hospital. I am mainly concerned with the diagnosis of the cancers. So I will talk about mainly diagnosis and risk factor, and treatment and management will be discussed by Dr. Fahmi Abdullah, who is a radiation oncologist and directly involved in treatment of the cancer patients. So I will start my presentation. Okay.
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हमारा जो सेंटर है मीनार कैंसर हॉस्पिटल, ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहा है और हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 सेंटर्स हैं जो कंट्री के डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट सिटीज में काम कर रहे हैं। और इनका एक बहुत मेजर रोल है इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट्स। और उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क में जितने कैंसर पेशेंट्स का लोड है वो 80% लोड जो कैंसर पेशेंट्स का है वो हमारे एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल्स जो हैं उसको वो मैनेज कर रहे हैं। अपनी फॉर्मल टॉक से पहले मैं कुछ चीज़ शेयर करूँगी, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने सोचा शेयर करूँ, ऑल्दो कि मुझे इनके रेफरेंसेस मैं नहीं ले सकी। तो उनमें से एक ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देयर आर टू ब्लेसिंग्स which many people do not appreciate, health and leisure. Similarly, on another, sorry, एक और हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया, no blessing other than faith is better than well-being. तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे मज़हब में हमारी सेहत, हमारे आराम और हमारे सुकून की कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है कि उसमें इसको हमारे ईमान के बाद हमारी सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं बयान की गई। तो इसलिए हमारा ये मॉरल, एथिकल एंड रिलीजियस ड्यूटी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें और सेहत के लिए हम अपनी कोशिश करें सेहत को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला की इमानत है और इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। और हम सेहत के से मुतल्लिक जितनी मालूमात हासिल कर सकते हैं उसको हासिल करें, उसके लिए जितना प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए वो करें, और उसको हम एक अपने ईमान का और अपने मज़हब का हिस्सा समझ के करेंगे तो हमारी सारी एफर्ट जो है वो हमारी इबादत में शामिल होगी। हमारे जैसे कि डॉक्टर आसिया ने डिटेल में बता दिया कि वर्ल्ड कैंसर डे क्या है और उसका मकसद क्या है। ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है जिसका मकसद सिर्फ यही है कि कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम पब्लिक तक पहुँचाएँ। और उसकी रीज़न जो है वो मेन यही है कि कैंसर की रेशियो और इंसिडेंस डे बाय डे न्यू केसेस का नंबर बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड वाइड, और उससे रिलेटेड डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स भी डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए या कैंसर से रिलेटेड जितने डैमेज है, जितने लॉस हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, तो हमारा मकसद ये कैंसर डे मनाने का यही होता है कि हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैंसर के बारे में डिसेमिनेट कर सकें। और इसमें आज की प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि व्हाट कैंसर इज़ एंड हाउ टू फाइट इट, कि कैंसर है क्या, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, किन लोगों में कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, और इसकी जो डैमेज और कॉम्प्लिकेशंस और जो भी इससे होने वाले हमें नुकसानात हैं, हम उनको अपने आप को उनसे कैसे बचा सकते हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस के, इस डे की सिग्निफिकेंस जैसे बता दिया आपको कि आज के डे मनाने की सिग्निफिकेंस यही है कि हम कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जान सकें। तो कैंसर है क्या? एक्चुअली कैंसर इज अ डिजीज जो कि दैट इज द सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ ग्लोबली आफ्टर हार्ट डिजीज। इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड जो जितनी डेथ्स हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें हार्ट डिजीज पहले नंबर पे हैं और उसके बाद कैंसर दूसरे नंबर पे है। यही एक अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाने पे, सोचने पे मजबूर हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी वर्ल्ड वाइड कैंसर कम्युनिटीज़ हैं, कैंसर पे काम करने वाले लोग हैं, वो मिल के बैठे और उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि ये डे मनाया जाए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचाई जाएँ।
ये आप ग्राफ आपके सामने नजर आ रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि कैंसर नंबर ऑफ जो न्यू कैंसर केसेस हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। 2010 में उनकी क्या नंबर था और 2020 में क्या है। इसी तरह नंबर ऑफ डेथ रेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। और जो अप्रोक्सीमेट रिस्क फैक्टर है फॉर कैंसर, दैट इज 1 in 5 men and 1 in 6 women वर्ल्ड वाइड, यानी कि हर 5 मर्द हजरात में से एक और हर 6 खवातीन में से एक खातून जो है वो अपने लाइफ टाइम में किसी भी स्टेज पे कैंसर डेवलप कर सकती है। और सबसे जो अलमिया है वो ये है, और जो एक परेशान कुन बात है वो ये है कि 70% ऑफ जो डेथ्स फ्रॉम कैंसर जो है वो हो रही हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रही हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज कम है, जहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, वहाँ पे डेथ रेट भी ज्यादा है। और इस हाई डेथ रेट की रीजंस जो हैं वो पुअर कंट्रीज में जो आती हैं टॉप पे रीजंस जो हैं वो नंबर 1 तो पॉवर्टी है कि गुर्बत है, और गुर्बत की वजह से यहाँ पे लोगों की प्रायोरिटीज जो हैं वो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे कि अपनी उनकी जो है रोटी कपड़ा मकान, और वो हेल्थ की तरफ जो है वो हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते या उनकी टॉप प्रायोरिटीज में शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से वो ना तो वो डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं। और दूसरी जो मेन रीजन है दैट इज लेट प्रेजेंटेशन, कि मरीज जो है वो कैंसर के मरीज आते ही लेट स्टेज पे हैं, इनिशियल स्टेज पे या तो वो इसको इग्नोर करते हैं या उनको पता ही नहीं चलता कि उनको कैंसर शुरू हो चुका है, और जब उनको पता चलता है तब तक बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होती हैं और कैंसर जो है वो काफ़ी एडवांस स्टेज तक जा चुका होता है, अपनी जगह से दूसरे बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल चुका होता है। उस स्टेज पे आके इलाज जो है वो नामुमकिन हो चुका होता है, तो जिसकी वजह से जो है वो डेथ रेट ज्यादा हो जाती है। और लेट प्रेजेंटेशन क्यों होती है? एक तो वही पॉवर्टी हो गई, गुर्बत हो गई कि उनके पास पैसे नहीं है, वो इलाज के लिए निकलते नहीं है। और दूसरी मेन रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि हमारे लोगों को इस चीज की आगाही नहीं है कि कैंसर है क्या, उसकी अलामात क्या होती हैं, उनसे हम पहले तो बचा कैसे जा सकता है, और दूसरा कि अगर कैंसर हो गया है तो पता कैसे चलेगा कैंसर हो गया है, या हमें इनिशियल स्टेज पे कैंसर को डायग्नोज करने के लिए क्या करना चाहिए और कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैंसर है क्या। कैंसर जो है वो एक डिजीज है, बाकी बीमारियों की तरह आम बीमारी है, लेकिन जर्नली जो है कैंसर के बारे में पब्लिक में बहुत फोबिया पाया जाता है, बहुत खौफ पाया जाता है। कैंसर के लफ्ज को या कैंसर की बीमारी को एक मौत का पैगाम समझा जाता है कि ये जिसको कैंसर हो गया बस अब उसकी डेथ यकीनी है। तो ऐसा नहीं है। हमारी अवेयरनेस का मकसद भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स का ये है कि हम लोगों को बताएं कि ऐसा नहीं है, कैंसर आम बीमारी की तरह एक बीमारी है जो कि काफी हद तक काबिले इलाज है। ट्यूमर्स जो है, कैंसर होता क्या है, ये ट्यूमर की एक किस्म है। ट्यूमर जो होती है दैट इज ए हीप ऑफ टिश्यू और हीप ऑफ सेल। एक्चुअली बॉडी टिश्यू, आप लोग जैसे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इतना आपको बैकग्राउंड नॉलेज है कि हमारी बॉडी टिश्यू और सेल से बनी हुई है, और हमारे टिश्यू और सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं नीड बेसिस पे, कि जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे, टिश्यू ग्रो करेगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, उसकी नीड खत्म हो जाएगी तो वो सेल ग्रो करना खत्म कर देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से हम ये सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ या टिश्यू ग्रोथ हो जाती है, तो वो मल्टीप्लाई करते करते ग्रोथ करते करते एक लंप की शक्ल में जाहिर हो जाता है, एक हीप ऑफ सेल और हीप ऑफ टिश्यू की शक्ल में जाहिर हो जाता है, उसको हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर की आगे दो किस्में हैं, एक बिनाइन और एक मिलिग्नेंट। बिनाइन से मुराद होता है बेजरर गिल्टी या बेजरर रसौली, जिसके जो कोई नुकसान नहीं देती, जो कि उसका अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, उसको कुछ भी ना करें, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको
सर्जरी करके निकाल दें तो दैट्स इट, कि वो खत्म हो जाएगा, वो आगे कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर जो है ये इसको हम आम जुबान में जड़ों वाली रसौली कहते हैं, और इसका मोनोग्राम भी स्कॉर्पियो से रखा गया है, जैसे इसकी टांगें फैली होती हैं और मल्टीपल इसकी लेग्स जो है वो आउट पॉकेटिंग कर रही हैं, इस तरह ये जो मैलिग्नेंट कैंसर है ये भी इसकी जड़ें फैलती हैं जिस्म के अंदर, और ये अपने साइट ऑफ ओरिजिन से फैल के दूसरी जगहों तक जा सकता है, अपने साथ वाले ऑर्गन, साथ वाले टिश्यूज को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और उससे हट के वो डिस्टेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसको हम जड़ों वाली रसौली कहते हैं, और ये है जो कि बहुत इसकी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट जरूरी होती है। जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं उनमें एक तो लंग कैंसर है, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर जो जीआईटी का है, और प्रोस्टेट जो मेल्स में गदूद होते हैं मसाने के पीछे, उनका कैंसर है। अब कैंसर की वजूहात क्या हैं? कैंसर के जो कॉजेज हैं, अब तक जो सॉलिड रीजन या सॉलिड काज कोई भी सामने नहीं आई, लेकिन जितनी रिसर्च और जितना कैंसर पेशेंट्स का डाटा इकट्ठा किया गया है तो उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे देखे गए हैं, कुछ रिस्क फैक्टर जिनकी मौजूदगी में कैंसर का चांस बढ़ जाता है। अब वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? उनमें सबसे अहम तो जो है वो एक तो हमारा चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट हैबिट्स चेंज हो गई हैं, हम लोग अपनी ट्रेडिशनल डाइट से सब्जियां, फल और इन चीज़ों से हट के जंक फूड पे आ गए हैं। और दूसरा जो अहम है हमारे लाइफस्टाइल में कि हम आराम पसंद बहुत हो गए हैं, हम कामचोर हो गए हैं, कि पुराने ज़माने में आप देखें लोग बहुत पैदल सफ़र किया करते थे, लंबा लंबा सफ़र पैदल करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आराम प्रस्त होना शुरू हुए, साइकिल, मोटरसाइकिल, कारों तक आ गए, और अब हम इतने आराम प्रस्त होते जा रहे हैं कि अब तो उठ के डोर बेल पे दरवाजा खोलना भी मुश्किल लगता है, और अब रिमोट कंट्रोल जो है वो डोर लॉक्स हमने यूज करने शुरू कर दिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसी तरह निस्वार, पान, बीड़ा, ये इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, कंटिन्यूस इस्तेमाल हेड एंड नेक कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है, जिसमें जुबान का, मसूड़ों का और हलक के कैंसर शामिल हैं। इसी तरह रीयूज ऑफ सिरिंजेस, यूज्ड सिरिंजेस को बार बार यूज करना। हेपेटाइटिस सी जो है, जिसको हम काला यरकान भी कहते हैं, दैट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर लीडिंग टू द लिवर कैंसर। तो जो और उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है, उसमें मेन फैक्टर जो है वो सिरिंज का यूज है, कि एक ही सिरिंज से बार बार मल्टीपल लोगों को अगर इंजेक्शन लगाया जाए, यूज किया जाए, या इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, तो इसलिए ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो मेक श्योर करें कि यूज सिरिंज को ना यूज करें वहाँ पे। आप अपने सामने देखें कि वो रैपर से न्यू सिरिंज यूज करते हैं, ताकि ये इन्फेक्शन जो है हेपेटाइटिस सी की, ये इसके स्प्रेड को हम रोक सके। इसके स्प्रेड को रोकेंगे तो लिवर कैंसर का चांस कम होगा। इसी तरह पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, स्मोक, इंडस्ट्रियल एरियाज में जो स्मोक है जो कि अनअवॉइडेबल है, वक्त के साथ साथ इंडस्ट्रीज वो है वो डेवलप कर रही है। इसी तरह अल्कोहल का यूज है, लकीली कि हमारे माशरे में तो इसका यूज बहुत मिनिमम है, बल्कि नेग्लिजिबल है, लेकिन इसका यूज भी जो है वो लिवर कैंसर का और जीआईटी कैंसर का चांस बढ़ाता है। टोबैको यूज का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। आप उसका अंदाजा इससे लगाएं कि जितनी भी कैंसर रिलेटेड डेथ हो रही हैं उसमें 22% कंट्रीब्यूशन जो है वो टोबैको रिलेटेड जो है वो कैंसर हैं, जैसे लंग कैंसर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टॉप जो कॉमन कैंसर है उसमें लंग कैंसर शामिल है। अब हम ये देखेंगे कि कैंसर प्रेजेंट कैसे करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर कैसी होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो कैंसर है दैट इज द हीप ऑफ द टिश्यू, वो स्वेलिंग या लंप की शक्ल में जाहिर होगा।
मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन यही होती है, लेकिन होता क्या, अच्छा, और बॉडी के आप हेड से लेके टो तक किसी भी टिश्यू या ऑर्गन का कैंसर हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो एक्सटर्नल हमारी बॉडी सरफेस है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, उनमें जो लंप और स्वेलिंग होगी वो तो इमीडिएटली नोटिस हो जाती है, लेकिन वो इनिशियल स्टेजेस में पेनलेस होती है, जिसकी वजह से, पेन ना होने की वजह से लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इसको हमने चेक करवाना है। यहाँ पे अक्सर पेशेंट जब लेट आते हैं तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आप लोग पहले नहीं आए, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जी मुझे तो कुछ कह ही नहीं रही थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, इसलिए मैंने इसको अहमियत नहीं दी या मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस पॉइंट यही है कि जो पेनलेस लैंप है दैट इज मोर डेंजरस, दैट इज मोर अलार्मिंग देन पेनफुल लैंप। जो पेनफुल लैंप होते हैं वो रेयरली कैंसरस होते हैं, वो सिर्फ लेट स्टेजेस में जाके पेनफुल होते हैं, इनिशियल स्टेजेस में ये पेनलेस होते हैं। और दूसरा ये अहम बात है कि जो लंप या जो ट्यूमर हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में होते हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे होते, और जैसे मैंने बताया कि इनिशियल स्टेज में ये पेनलेस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, इसलिए वो हमें नजर भी नहीं आ रहे, तो वो अंदर ही अंदर जो हैं वो बढ़ते रहते हैं और वो उस ऑर्गन को डैमेज करते रहते हैं। क्लिनिकली पेशेंट को सिम्टम्स तब आते हैं जब वो ऑर्गन, जो साइट ऑफ ओरिजिन का जो ऑर्गन है, जब उसका फंक्शन इम्पेयर होना शुरू हो जाता है, जब वो इतना डैमेज हो जाता है कि उसका जो फंक्शन कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाता है, तब वो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट कराता है, और तब तक वो अंदर काफी फैल चुका होता है। तो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये बताएं कि कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनको अगर परसिस्ट कर रहे हैं तो आप फौरी चेकअप कराएं, और कैसे हम अर्ली स्टेज पे जो जो हमें नजर नहीं आ रहे इंटरनल ऑर्गन्स के जो ट्यूमर्स हैं उनको हम अर्ली स्टेज पे कैसे डायग्नोज करें। तो कुछ सिम्टम्स हैं, एक्चुअली सिम्टम्स जो हैं, एक तो मेन तो ये हो गया कि लंप है। अब लंप जो प्रॉब्लम कर रहा है वो डिपेंड करता है कि वो साइट ऑफ ओरिजिन क्या है, जिस ऑर्गन का उसका प्राइमरी साइट होगा ओरिजिन का, उस ऑर्गन के हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। जैसे अगर लंग कैंसर है तो उसमें परसिस्टेंट कफ होगी और कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है। इसी तरह अगर लिवर का कैंसर होगा तो जॉन्डिस की शक्ल में जाहिर होगा। अगर गट का कैंसर है, जीआईटी का कैंसर है, तो स्टूल में ब्लड आ सकता है। अगर आपके यूरिनरी सिस्टम का है, किडनी का है, यूरेटर का है, ब्लैडर का है, तो यूरिन में ब्लड आ सकता है। और इसी तरह अगर कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा लेकिन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, इस सिम्टम्स कोई नहीं है, बुखार कोई नहीं है, तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन मुसलसल वजन जो है वो कम होता जा रहा है, तो वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, उसमें भी फौरी तौर पे चेकअप करवाना चाहिए। और जैसे ब्रेन ट्यूमर है उस पे ये होगा कि सीवियर हेडेक होगी और अनकंट्रोल्ड बाय द रूटीन मेडिसिन, पेन किलर्स, और उस हेडेक के साथ वॉमिटिंग भी हो सकती है और बेहोश भी हो सकता है मरीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस सारी सिचुएशन के साथ फाइट कैसे करना है, हमने कैंसर को कंट्रोल कैसे करना है, कैंसर रिलेटेड डेथ्स को और कैंसर रिलेटेड इंसिडेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है। उसमें दो मेन फैक्टर्स हैं। एक तो हम रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करें, जो हमें पता है कि जो जो फैक्टर्स जो हैं वो कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं, हम उनको अवॉइड करें। और दूसरा जो है कि हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर पे जोर दें, और वो कैसे हो सकता है, हम अपनी डाइट हैबिट चेंज करें, हम सब्जियां फल अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करें, जंक फूड को कम से कम करें, स्मोकिंग को हम अवॉइड करें, स्टॉप करें, और इसको हम आगे भी कन्वे करें अपनी नई जनरेशन तक, अपने लोगों तक कि ये एक डेंजरस चीज़ है। और दूसरा ये कि हम अपनी लाइफ को हम एक्टिव करें, हम एक्सरसाइज को रूटीन बनाएं और एक्टिव लाइफ गुजारें, हम ये जो आराम प्रस्ती वाली जिंदगी है इसको छोड़ें। अब ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, कि हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे कैसे डायग्नोज करें, जब तक कि वो आपको कुछ कह नहीं रहा या आपको पता ही नहीं कि कैंसर हो गया है आपको, तो आप कैसे उसको पिक कर सकते हैं। तो
उसमें दो चीजें हैं, एक थ्रू अवेयरनेस और दूसरा स्क्रीनिंग। अवेयरनेस जैसे मैंने आपको बता दिए, कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स मैंने बता दिए। सिम्टम्स जैसे अपीयर हों फौरी तौर पे चेकअप कराएं। दूसरा अहम जो फैक्टर है वो स्क्रीनिंग का है, इंपॉर्टेंट जो हमारा टूल है अर्ली डायग्नोसिस का, वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग मीन्स कि एक पेशेंट नहीं बल्कि एक पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, वो रूटीन में अपना चेकअप कराए। ये सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। जब एक हेल्दी पर्सन को हम कहें ना कि आप अपने कैंसर की टेस्ट कराएं, तो वो माइंड करते हैं। तो हमने अवेयरनेस के थ्रू ये लोगों को कन्विंस करना है कि रूटीन में अपना चेकअप कराएं। और वो ये है कि डिफरेंट टेस्ट हैं डिफरेंट कैंसर्स की डायग्नोसिस के लिए। जैसे कि लंग कैंसर के लिए हम एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी कराते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए सीटी स्कैन कराते हैं, और एब्डोमिनल सॉरी एब्डोमिनल ट्यूमर्स के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और कुछ कैंसर्स हैं जिनके ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जो कि ब्लड में हम जिनके लेवल कराते हैं, उससे हमें पता लग सकता है। अब ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है एट द स्टेज ऑफ प्रेजेंटेशन। डिफरेंट मोडेलिटीज हैं ट्रीटमेंट की, तो जिनको डिटेल में आपके साथ डॉक्टर फामिया डिस्कस करेंगी। तो मैं डॉक्टर फामिया को कहूंगी कि वो आपको मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के हवाले से। ये तो सही हो जाएगा। हाँ। Assalamualaikum. I'm Dr. Fahmi Abdullah and I'm a cancer specialist at Minar Cancer Hospital. डॉक्टर बीना ने काफ़ी अच्छा इंट्रो दे दिया रिगार्डिंग के कैंसर की कॉजेज़ क्या हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या है और जनरल ओवरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि स्टार्ट में बात हुई कि 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है, कैंसर अवेयरनेस का दिन। तो इस दफ़ा जो बेसिकली वर्ल्ड कैंसर डे थीम जो है वो है आई एम एंड आई विल। बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कैंसर डे ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और एक हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है UICC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कैंसर कंट्रोल। ये 2008 में स्टार्ट हुई थी, और बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि कैंसर के जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जाए। और ये जो UICC है ये हर ईयर थीम देती है, जिसकी बेसिस पे डिफरेंट सेमिनार्स और बाकी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। तो 2019, 2020 एंड 2021 यानी कि इन तीनों सालों का जो थीम था दैट वाज आई एम एंड आई विल, यानी कि इसमें पर्सनल एफर्ट्स की बात है। यानी कि ना सिर्फ डॉक्टर्स, ना सिर्फ मेडिकल स्टाफ, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर हर किसी की पर्सनल एफर्ट्स इसमें ज़रूरी हैं अवेयरनेस में, इन कैंसर अवेयरनेस। और कैंसर अवेयरनेस बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं। एक तो ये कि रिस्क फैक्टर्स का बताओ, जो डॉक्टर बीना साहिबा ने कवर कर लिया। दूसरा ये कि अर्ली डिटेक्शन, और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि अगर तो ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आगे इसको डील कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या है, क्योर क्या है। तो बेसिकली प्रीवियसली जैसे हर फील्ड में एडवांसेस हुई हैं, हर जगह तरक्की हुई है, न्यू रिसर्चेज हुई हैं। तो
प्रीवियसली 3 ट्रीटमेंट मोडालिटीज थी, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, बट इसमें भी डेवलपमेंट हुई है और हमारे पास न्यू ट्रीटमेंट मोडालिटीज अब अवेलेबल हैं, जिसके अंदर जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो टारगेटेड थेरेपीज ऐड हुई हैं, इम्यूनोथेरेपीज ऐड हुई हैं और हार्मोन थेरेपीज। इसका थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस करती हूँ। ऑब्वियसली आई विल गो फॉर जनरल व्यू, क्योंकि स्पेसिफिकली हर कैंसर के अंदर डिफरेंट सर्जरीज हैं, डिफरेंट मोडालिटीज आगे फर्दर हैं। सर्जरी बेसिकली हम लोगों की डोमेन में नहीं आती, हम लोग पेशेंट्स को रेफर करते हैं फॉर सर्जरी। जो मेन चीज़ हम लोगों की डोमेन में आती है दैट इज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी। अगर तो कीमोथेरेपी की बात करें तो प्रीवियसली जैसे मेन मोडालिटी कीमोथेरेपी थी, बट इस ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक कीमोथेरेपी की वजह से एक तो ब्लड लाइंस, जो ब्लड की प्रोफाइल है HP, वो लोग वो बहुत डिरेंजमेंट हो जाती है, इन्फेक्शंस वगैरह। इसके अलावा इसके अंदर सर के बाल वगैरह गिर जाते हैं और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर कीमोथेरेपी। तो कीमो टॉलरेट करना इजी नहीं होता पेशेंट के लिए। तो अब जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी तरीके से कीमोथेरेपी को कम किया जाए, जिन पेशेंट्स को कीमो की जरूरत नहीं है उनको हम कीमो से बचा लें। और इसका ऑल्टरनेट जो मेथड्स हैं, टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा आ गई है। उसमें यह है कि एक स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर ट्यूमर सेल्स को किल किया जाए और ब्रॉड कीमोथेरेपी से पेशेंट को बचा लिया जाए। तो एक और जो आजकल न्यू एडवांसमेंट आई है इन कैंसर ट्रीटमेंट दैट इज इम्यूनोथेरेपी। उसका मतलब ये है कि पेशेंट का जो अपना इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया जाए और वो इम्यून सिस्टम डिजीज के अगेंस्ट फाइट करे, उससे डिजीज को ओवरकम कर ले, हम साइड इफेक्ट से बच जाए। और जहाँ तक रेडिएशन थेरेपी की बात है, रेडिएशन थेरेपी 2 तरह की है, एक तो एक्सटर्नल रेडिएशन और सेकेंडली इंटरनल रेडिएशन, जो कुछ ट्यूमर्स के अंदर स्पेसिफिकली यूज होती है। अगेन उसमें साइड इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं थ्रू इंटरनल रेडिएशन। और वो कुछ खास किस्म के कैंसर होते हैं लाइक सर्वाइकल कैंसर और यूट्राइन कैंसर, जिसमें ब्रेकी थेरेपी यूज करके हम एक्सटर्नल रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स को बचा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और जो बहुत लेटेस्ट एडवांसमेंट हुई है एक्सटर्नल रेडिएशन में, उसमें ये है कि अब हम लोगों के पास फ्यूचर में विद इन अ मंथ और 2 एक न्यू मशीन इंस्टॉल होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर या लिनेक का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर रेडिएशन जो हैं वो बहुत टारगेटेड होती हैं और पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स जो रेडिएशन के थ्रू होते हैं लाइक स्किन पे बर्न और जो लेट इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, रेक्टम में प्रॉब्लम्स, और जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनकी टॉक्सिसिटी बहुत कम हो जाएगी उस मशीन के आने से। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल हम यहाँ पे मीनार में स्किन कैंसर्स क्योर नहीं कर सकते, स्किन के कैंसर्स। तो उस मशीन के आने से जो कि मार्च या अप्रैल में लग जाएगी, हम स्किन के कैंसर्स भी यहाँ पे ट्रीट कर सकेंगे। तो ये काफ़ी एक न्यू चीज़ है जो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। और ट्रीटमेंट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हार्मोन थेरेपी है। हार्मोन थेरेपी कुछ कैंसर में उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं लाइक ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। इसके अंदर मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम हार्मोन थेरेपी पे डाल देते हैं। अगेन कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है कंपेयर टू दैट, और डिजीज़ का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। तो ये जो न्यू एडवांसमेंट्स हैं कीमोथेरेपी के अलावा, ये टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी एंड हार्मोन थेरेपी, ये हमारे पास आजकल ज़्यादा न्यू एडवांसेस के हिसाब से हैं हमारे पास। और ओवरऑल यही है, ओवरऑल हर बाकी साइट स्पेसिफिक हर कैंसर के अंदर ट्रीटमेंट डिफरेंट है, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट डिफरेंट है। उसको फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस में कवर कर लेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू स्पेसिफिक कैंसर टाइप तो उसकी मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल यही मोडालिटीज़ हैं जिनके थ्रू हम कैंसर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। बट अगेन वही बात कि अगर अर्ली स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट करता है लाइक स्टेज 1 और 2 और 3 भी कह सकते हैं कुछ कैंसर्स के अंदर, तो उसमें डिजीज़ को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है कंपैरेटिवली के पेशेंट अगर लास्ट स्टेज पे प्रेजेंट करता है स्टेज 4 पे। तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट स्टेज 4 पे जो ट्रीटमेंट होता है उस पे जस्ट हम सिम्टम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यूजुअली मीनार में हम किसी भी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते, इवन इफ पेशेंट प्रेजेंट्स इवन एट स्टेज 4 तो हम किसी को नो नहीं कहते। बट ऑब्वियसली आउटकम इतना अच्छा नहीं होता ट्रीटमेंट का बनिस्बत इसके कि अर्ली स्टेज पे अगर कोई पेशेंट हो तो उसके लिए।
आई थिंक ब्रीफ ओवरव्यू यही है मैनेजमेंट के हवाले से, यही डिफरेंट मोडालिटीज हैं। बाकी आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर फिर हम फर्दर स्पेसिफिक हो जाएंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो। सॉरी लाइट चली गई हमारी, हमारी आवाज आ रही है क्या? सिस्टम चला गया, स्लाइड चली गई है। यस मैडम, आवाज आ रही है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हम दोनों हाथ से। जी बिल्कुल। Dear participants, please if you have any questions, start. Assalamu alaikum. I have got a question. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. अगर एक ओवेरियन कैंसर की पेशेंट हो और उनकी सर्जरी हो चुकी हो स्टेज 4 के बाद, तो आपने कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड शी इज ऑलमोस्ट 71। तो आप काइंडली थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करेंगी कि किस तरीके से हम उनको इस स्टेज पे आफ्टर द सर्जरी उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी इस कंडीशन को। अच्छा, ऐसे है कि आपने बात की ओवेरियन कैंसर की, राइट? जी जी अच्छा, इसमें ये है कि जी। स्टेज का मतलब ये है कि डिजीज स्प्रेड कर गई है टू अदर बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसमें स्टेज 4 या वो लंग में जा सकता है, या वो लिवर में जा सकता है, या वो बोन में जा सकता है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स में से अगर तो वो लिवर में चला गया तो उसका आउटकम डिफरेंट होगा, अगर वो लंग्स में गया है तो उसका आउटकम डिफरेंट होगा। अगेन लंग्स में अगर वो गया है तो उसने कितनी हद तक लंग्स को इन्वॉल्व किया है, पूरे लंग को इन्वॉल्व कर लिया है, या लंग का एक लोब इन्वॉल्व किया है, या उसमें इतना इन्फेक्शन कर दिया कि वहां पे प्लूरल एफ्यूजन हो गई है, अंदर पानी भर गया फेफड़ों में। अगेन इन सारी चीजों में आउटकम डिफरेंट होगा। इसको हम बेसिकली क्लिनिकली पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं जब भी कोई स्टेज 4 का पेशेंट आता है। अगर तो लंग्स में चला गया है तो अगेन फिर हमने सिम्टम्स देखने कि जिस ऑर्गन के अंदर ये पेशेंट का कैंसर चला गया है उसको उसके सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, सांस कितना खराब हो रहा है उसको बॉडी में हड्डियों में कितना दर्द हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर हम उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। स्टेज 4 के अंदर सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगेन ट्रायल्स हैं, रिसर्च स्टडीज हैं, उसमें ये है कि अगर तो आप बेस्ट सपोर्टिव केयर देते हैं वर्सेस लो डोज कीमोथेरेपी। अगर ओल्ड एज पेशेंट है उसमें हम ये भी देख रहे होते हैं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स टॉलरेट होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें हम बेसिकली बहुत लो डोज कीमो से स्टार्ट करते हैं अगर हमें करनी हो। अगर तो हमें लगे कि पेशेंट फिट है, टॉलरेट कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, तो बहुत लो डोज से स्टार्ट करते हैं और पेशेंट को रिपीटेडली बुलाते हैं 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद। अगेन ब्लड के टेस्ट करा के देखते हैं, अगर तो पेशेंट बर्दाश्त करे तो हम लो डोज कीमो करेंगे और उसकी वजह से उसके सिम्टम्स कंट्रोल होंगे। जब सिम्टम्स कंट्रोल होंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपैरेटिवली पेशेंट की बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट ने टॉयलेट नहीं किया, ओल्ड एज पेशेंट है और ट्रीटमेंट से उसको फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है, तो हम जस्ट उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, लाइक उसका सांस बेहतर रहे, दर्द उसको ना हो तो दर्द की दवाएं दे देंगे, सांस बेहतर करने के लिए उसको ब्रोंकोडायलेटर्स, इस तरह की चीजें दे देंगे ताकि वो कंट्रोल हो। और अगेन ओवेरियन कैंसर में टारगेटेड थेरेपी भी आ गई है, लेकिन मसला ये है कि दैट इज क्वाइट कॉस्टली, काफी कॉस्टली मेडिसिन और इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हमें फार्मास्यूटिक्स को क्या के कंपनीज को क्या को मेडिसिन टिपिकली अरेंज करानी पड़ती है। तो ओवेरियन के अंदर इस तरह से हम लोग चल रहे होते हैं। ओके, थैंक यू। और अगर इसको ब्लैडर को लाइक आफ्टर सर्जरी ब्लैडर वाज इफेक्टेड इनिशियली, तो 20% ब्लैडर भी रिमूव हो चुका है, तो लाइक थ्रू डाइट या तो और किस तरीके से हम इनको लाइक सस्टेन कर सकते हैं उनकी हेल्थ को? लाइक इसमें ये है कि अगेन न्यूट्रल के हेल्दी डाइट जो पेशेंट टॉलरेट करे। ऑब्वियसली कैंसर के पेशेंट में एक और मसला ये होता है, दिस पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट विद लॉस ऑफ एपिटाइट। इन पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है, तो उनमें हम एपिटाइजर्स दे रहे होते हैं और इसमें यूजुअली हम ये एडवाइस करते हैं कि स्मॉल मील्स लें और फ्रीक्वेंट लें, यानी कि इंटरवल स्मॉल हो, क्वांटिटी भी स्मॉल हो, तो ताकि वो कुछ ना कुछ लेते रहें टाइम के हिसाब से। लाइक एक स्केड्यूल बनाए कि हर 3 घंटे के बाद उन्होंने कुछ खाना है, हर 3 घंटे के बाद, और इतनी क्वांटिटी में खाना है ताकि उनकी डाइट बैलेंस रहे और वो खाते रहें। और इससे ज़्यादा तो फिर बैलेंस डाइट, अगर हेल्दी वॉक, अगर वो वॉक कर सकती हैं थोड़ी सी,
और थोड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि उनको मेंटली पीसफुल रखें। अक्सर पेशेंट हमारे पास इस 4th स्टेज पे स्ट्रेस के साथ प्रेजेंट करते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तो उसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट के जो इर्द गिर्द के अटेंडेंट्स हैं, यहाँ उनका रोल आता है कि वो पेशेंट को मेंटली तौर पे कितना सेटिस्फाई और कितना पीसफुल रख सकते हैं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी ऑल्सो इस स्टेज के ऊपर, स्पेशली स्टेज 4 के ऊपर। Okay, thank you so much. Dear audience, is there any question? Assalamu alaikum, ma'am. Can you hear me, please? जी जी बोलिए। Okay. My name is Dr. Sanaullah Sajid, and I'm working as a lecturer in Institute of Microbiology, University of Agriculture, Faisalabad. Actually, I'm concerned about the treatment related to this cancer. Somewhere I have studied about the autogenous vaccine. Is this vaccine practiced in case of cancer patients, and what are the chances of survivability in case of this autogenous vaccine? Yes, the कुछ cancers के अंदर there are vaccines, but these are usually present in limited opportunities are there. Like in cervical cancer, vaccine is available to prevent disease further in cases patient presents with high-grade squamous intraepithelial lesions or other dysplasias. These vaccines are available. Usually, we offer in every young girls mostly, but males can also get vaccine for this. From age 9 to 26 usually, and basically gynae department deals with this. In Menar, we don't have this facility of vaccination, but in cervical cancer, there is vaccine to prevent these lesions. Basically, for dysplasias that further transform into malignancy, in order to cover those subtypes, we can use vaccine, but we have to go for vaccine. It is recommended in cervical cancer. Some literature have shown vaccination also for CA prostate, सिपिलुसिल के नाम से आती है, बट उसको कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने नहीं देखा। तो वैक्सीन जस्ट सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के अंदर यूजली जिसके आउटकम्स बेटर हैं, यानी कि जिससे डिजीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिली है, दैट इज ओनली इन सर्वाइकल कैंसर मोस्टली। बाकी कैंसर्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा कोई रोल एस्टैब्लिश नहीं है, सर्वाइकल में है फॉर श्योर। फ्रॉम एज 9 to 26 it must be, patient must be, everyone should be vaccinated, but usually बहुत हमने नहीं देखा रूटीन में पेशेंट ने वैक्सीन कराई हो सर्वाइकल कैंसर में। और बट जो एंटीनेटल विजिट्स होते हैं गायनी डिपार्टमेंट में, अब ये अवेयरनेस हो रही है कि दे आर गोइंग फॉर वैक्सीन्स इन यंग फीमेल्स मोस्टली। Thank you. Welcome. Assalamu alaikum, ma'am. I want to ask about the brain tumor type 3, borderline 4, and glioblastoma. How we can delay the reoccurrence of this type of brain tumors? Is there any possibility? Basically, when we talk about brain tumors and grade 3, these are aggressive tumors, and it depends how patient presented first time. If lesion was of small size and it was completely excised, which is rare in brain tumors, usually we see there is always residual tumor after surgical resection, because there are many important structures in the brain, and in surgery usually our aim is to remove the tumor with safe margin, 1 centimeter or 2 centimeter. But in brain tumors, while removing tumor, surrounding normal tissue also comprises important neurons, and there are various control centers in brain, so we do not go for wide margins in brain, and there is limited surgery in brain tumors. So mostly there is residual tumor after surgery in brain tumors. And if patient initially presented with very small tumor and that was completely resected, and residual tumor was very small, and after that patient underwent radiation therapy, and along with radiation therapy he or she also got oral chemotherapy along with radiation therapy in grade 3 or 4 tumors. And after treatment, post treatment MR brain was clear that it was showing no any residual disease, then outcome is good.
then we can expect better survival. But if there was residual disease after a whole treatment and still on MR images there was tumor present in brain, then outcome is obviously not as good as compared to those patients in which disease was completely resected and patient underwent whole treatment. Usually in follow-up after this treatment, even if still disease is there, residual disease is there, we go for 3 monthly and 6 monthly MR images, repeat scan. But in grade 3, we usually give patients adjuvant chemotherapy in tablet form. That is, patient will get chemotherapy every month, 5 days. And usually this is extended up to 1 year, basically in grade 3 and 4 glioblastoma. That is in the name of temozolomide. Oral capsules are there. And every month, 5 days, patient takes these oral chemotherapy. And we extend it till 1 year to prevent recurrence or to prevent further progression of cancer in these patients. And after 1 year, patient will, after 1 year, when this chemotherapy is completed, every 5 days in a month, we go for repeat MR brain with contrast to see if there is any residual disease. If there is any residual disease and patient is asymptomatic, we call him after every 3 months, and there are repeat imaging every 6 months. And we monitor size of the lesion. If there is progression of disease or size of the tumor increases, then we go for second line chemotherapy. So there are options are there. Again, it all depends upon patient performance status. Is patient mobile, doing routine activities? Will he or she be able to tolerate side effects of chemotherapy? Or what was the initial grade and what was the residual disease at the time of presentation? Again, these all factors are there to tell what is the prognosis or how we detect residual or recurrent disease in these patients. Means multiple factors are working there. There's no clear-cut one factor which tells how to do this. Hope I'm clear. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saba. Such a comprehensive answer and detailed. Thank you so much. मीनार के अंदर हमारे ना बेसिकली फोकस ये है कि वो वुमेन क्लिनिक भी हमारे पास है जहाँ पे हम ब्रेस्ट कैंसर और बाकी कोई भी कैंसर अक्सर, क्योंकि हम लोगों का एरिया ये है कि अक्सर फीमेल्स दे आर शाय mostly in South Punjab. So we have a women clinic also there and in Minar, और वहाँ पे रूटीन में स्क्रीनिंग एंड बाकी चीजें हो सकती हैं. हम बेसिकली वर्ल्ड कैंसर डे में ब्रेस्ट कैंसर के वाले से बात करते हैं क्योंकि इसका आउटकम बहुत अच्छा है, सर्वाइवल बहुत अच्छा है, 5 year सर्वाइवल बहुत अच्छा है, इवन इन स्टेज 3 पेशेंट गेट्स क्योर्ड. तो डॉक्टर बीना साहिबा भी हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से स्क्रीनिंग के लिए अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो लाइक कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं स्क्रीन और मीनार में क्या फैसिलिटीज हैं, तो मैडम डील करती हैं वहाँ पे ऐसे केसेस जहाँ पे जिनको क्लियर कट श्योर नहीं है कि उनको कैंसर है, बट दे यूजुअली कुछ डाउट है कि कहीं हमें कैंसर ना हो, तो उस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे, बिकॉज वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन हियर. Thank you very much. Can I post a question, please? Yeah, sure. Thank you. My name is Atif Razadi and I'm from Women University Multan, working as a computer programmer here. It's really a very informative talk. I just have one question that is related to screening. I want to know, is there any general test or screening tool that is available for most common cancers that can be used for healthy person for screening actually, instead of going a separate screening test for each cancer type? Thank you. Thank you. No, there is not a single test for all the cancers. There is different tests for different cancers. Initially, I told you that the signs and symptoms and pathophysiology and diagnosis and treatment depends upon the site of the cancer and type of the cancer. Similarly, diagnostic tests for different cancer originating from the different sites is different. For example, the cancer originating from the lung will be diagnosed on X-ray test or CT test. And cancer originating from the breast will be diagnosed on the mammography or breast ultrasound, not on the general ultrasound or other general tests. Got my point? Am I clear? Yes, ma'am. Thank you. I'm going to add one thing more. The screening is not recommended in every cancer.
because through studies it was shown that benefit was not as much as was harm. Because basically, if we talk about screening, we advise screening only in those tumors in which it becomes beneficial as compared to afterward harm to the patient. Like screening is mostly offered in breast cancers and cervical cancers. So in cervical cancers, we usually go for pap smears that mostly gynecologists do, and it does not come in our domain. But pap smear in cervical cancer and in breast cancer, screening mammograms. Mostly these are two screening tools that are widely used. Again, in lung cancer, because delayed exposure effects, CT chest, X-rays, they will further cause mutations and future risk of carcinogenesis. So we usually do not recommend in CL lung screening. Or mainly in breast and cervical cancer, we usually recommend screening. इन शॉर्ट मैं आपको अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो कि हम स्क्रीनिंग के लिए रिस्क और बेनिफिट को हम मेजर करते हैं कि हमें किस चीज़ का बेनिफिट ज़्यादा है। अगर स्क्रीनिंग में हमें बेनिफिट नज़र आ रहा है तो हम स्क्रीनिंग रिकमेंड करेंगे। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में हम इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं स्क्रीनिंग में कि इनका जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट जो है वो बहुत अच्छा है। इनके यूँ समझ लें कि अगर ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाएंगे तो उनकी ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल होगी। अर्ली डायग्नोसिस पे उसको पेशेंट को बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा बनिस्बत रेडिएशन रिस्क के, क्योंकि मेमोग्राफी में भी रेडिएशन तो दे रही हैं लेकिन इतनी ज़्यादा रेडिएशन वो नहीं होती जितनी कि हम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान दे एज कम्पेयर टू बेनिफिट। ठीक है ना, जहाँ पे हमें लगेगा कि रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेनिफिट वहाँ हम रिकमेंड नहीं करेंगे। जैसे कि लंग कैंसर में, क्योंकि ये लंग कैंसर अनलकीली जो है इसका आउटकम बहुत पुअर है कि अगर हम डायग्नोज कर भी लें पेशेंट को, अर्ली स्टेज पे भी कर लें तो भी इसका आउटकम जो है वो बहुत पुअर है, तो हम पेशेंट को बहुत बेनिफिट दे नहीं सकते। जबकि अगर एनुअली वो एक्सरे या सीटी टेस्ट कराएगा तो एनुअली उसको रेडिएशन डोज मिलती रहेगी, तो इसलिए उसमें हम रिकमेंड नहीं करेंगे। For all types of cancer. Assalamu alaikum. This is Dr. Mariam Zain, Director Auric, and congratulations. It's very informative seminar. In fact, I want to ask a question. Is there any special diet or care that can be taken beforehand in order to prevent such type of cancers? And what do you think that breast cancer is purely genetic or it can be reverted back at some stage of life? Thank you. जी बिल्कुल। देखें, मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बड़ा क्लियर बताया था कि हमारी जो देखें कंफर्म तो 100% नहीं है, लेकिन ये एक डाटा है जो कि एक ऑब्जर्वेशनल डाटा है जिसमें रिस्क फैक्टर जो हैं वो क्लासिफाई किए हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं वो रिस्क बढ़ाते हैं, जिनमें डाइट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया कि जंक फूड जो है वो उसमें रिस्क बढ़ रहा है। इसी तरह जो फल और सब्जियां जो हैं उनमें बहुत सारे नेचुरल कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि कैंसर प्रिवेंशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए डाइट का इम्पोर्टेंट रोल है। और इसी तरह जैसे आपने पूछा कि कैंसर प्योरली जेनेटिक है, जेनेटिक भी है, रिस्क बढ़ जाता है जेनेटिक। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी में बरका 1-2 पॉजिटिव है तो 100% उसको कैंसर होगा। उसमें भी हम सिर्फ ये देखते हैं कि उन पेशेंट्स में रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, और रिस्क फैक्टर्स की बात वही है कि जिनमें अगर उनको पता है कि ये पॉजिटिव हैं और इनमें रिस्क ज़्यादा है तो वो बाकी रिस्क फैक्टर को अवॉइड करें, उसको कंपनसेट करने के लिए। और ब्रेस्ट, क्योंकि हमने इसको जर्नल एक टॉपिक बनाया था, ब्रेस्ट से हम डिटेल में नहीं गए। ब्रेस्ट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ कि इसमें एक तो लैक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चों को फीड कराएं, वेट को बढ़ने ना दें, अपने वेट को कंट्रोल करें। ओबेसिटी इज मेन रिस्क फैक्टर। और उसके बाद स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिस्क पे है भी सही पेशेंट और अनलकीली उसको हो भी गया है तो हम उसको बेनिफिट दे सकते हैं अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस पे, क्योंकि इसमें ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 1 में अप्रॉक्सीमेटली 98 to 100% इसका क्योर रेट है।
Right, thank you. तो इस तरह के कोई कैंप्स या इस तरह कोई एक्टिविटी प्लान की जा सकती है कि वुमेन यूनिवर्सिटी में खवातीन को स्पेशली ये जो जी breast बिल्कुल cancer हम लोग screening या ब्रेस्ट कैंसर मंथ एक्चुअली अक्टूबर में सेलिब्रेट करते हैं। मंथ ऑफ अक्टूबर इज ब्रेस्ट कैंसर मंथ। तो उसमें हम करते हैं। पहले भी लास्ट ईयर भी हमने किया था, फिर बीच में कोरोना की वजह से ब्रेक आ गया। तो इंशाल्लाह हम लोग तो हाजिर हैं, जब कहें यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें कहे तो हम तैयार हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड स्पेशली। जी थैंक यू। डॉक्टर आसिया आपसे कांटेक्ट में रहेंगी तो फिर ये प्लान कर लेंगे हम। इन एडिशन मैं थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैडम, आपकी इजाजत से, कि मैडम ने जैसे कहा है कि स्पेशल डाइट लेने से इसको रिस्क फैक्टर जो है इसका थोड़ा सा नहीं काफी इफेक्ट हो रहा है। आजकल न्यू रिसर्च आ रही है, जितने पॉलीफिनोल्स हैं जिस डाइट में पर्पल कलर है उसको ले, क्योंकि उसमें साइनाडिन 3 ग्लूकोसाइड होता है, वो इनहिबिट करता है सेल प्रोलिफरेशन को। सो काइंडली एक जनरल और लेमैन की तरह उन चीजों को ज्यादा लें जो कलरफुल है। तो उसमें जो साइनाडिन 3 ग्लूकोसाइड है वो उसपे काफी आर्टिकल्स है, नई रिसर्च है। हमारे ग्रुप में भी न्यूरोबायोलॉजी ग्रुप ने भी इसको पब्लिश किया है, इसमें कैंसर बायोलॉजी में भी और ब्रेन रिसर्च में आर्टिकल्स हैं। तो इसका मैंने खुद भी देखा है लाइव इमेजिंग से कि फूड आइटम जितने भी है जिनमें पर्पल कलर है काइंडली उसको ज्यादा यूज करें। पर्पल भी और ग्रीन लीवी जो है वेजिटेबल्स वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। Assalamu alaikum. My name is Sadaf Shaheen from Bakhtavar Amin Medical and Dental College. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि बताओ हमारी फैमिली में ना 2-3 केसेस हमने देखे हैं, रिपोर्ट हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि जैसे हमारी फैमिली में और यंग गर्ल्स हैं हम उनको दें, तो मतलब प्रिवेंशन के लिए हम उसको यूज कर सकें? जी देखिए, उसमें हम प्रिवेंशन के लिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, ना कोई वैक्सीनेशन। जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि वैक्सीनेशन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर में अवेलेबल है और रिकमेंडेड है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। उसमें यही है कि हम उसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं उनमें यंग गर्ल्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो मंथली अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। वो लिटरेचर हम लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको शेयर भी करा देंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का सारा प्रोसीजर कैसे करना होता है। और मंथली वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। अगर उनको कोई उसमें चेंज, कोई प्रॉब्लम जो फील होती है तो फिर वो डॉक्टर से रजू करें। और बिलो 30 और 35 एज, 35 के बाद जो है वो मेमोग्राफी करवाएं अपनी एनुअली स्क्रीनिंग के लिए। जी मैम, थैंक यू सो मच। Is there any Any other question, please? I think there is no more question. So we will move towards concluding the session. Atif Saab, if any of the person from the administration is available, please. Currently, जो है, they are occupied in a meeting, so you may proceed towards concluding the event. Thank you. Okay, okay, thank you, thank you. So I am really indebted to both of my guest speakers who have devoted their precious time, and they have shared the great knowledge, detailed knowledge about cancer awareness. It is very useful for all of the people, for general public as well. So I appreciate their effort and their time. I am really grateful to them for their awareness and for answering the questions.
Regarding World Cancer Day, it aims to save the billions of preventable deaths each year by raising awareness and education about cancer and pressing governments and individuals across the world to take action against the disease. So, considering this aim, this seminar was organized, and as Dr. Famia highlighted, the theme is really very important. The theme of World Cancer Day is for this year is I am and I will. It's very important. So regarding this theme, I would like to ask the participants, please play your part. Please spread the knowledge you have gained through this important talk, and we should do something on our part, what we can do. So I am really thankful to my administration, my Vice Chancellor, Registrar and Atif Saab and faculty members who have contributed in organizing this seminar. This is really a very great opportunity for all of us. And we had already been with the Minar resource persons on breast cancer, and inshallah, in future we will also be. And I'm really thankful to Director Minar Cancer Hospital Multan, who have provided us the resource persons and their staff, and for organizing this important seminar. And inshallah, we will be doing these type of activities in future. Thank you, all of you. Thank you, Dr. Rubina, and thank you, Dr. Famia. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, Dr. Rubina and Dr. Famia.